So today we will discuss about the duality between amplitude comparator and phase comparator. तो पहले तो अपन ने एम्पलीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात की थी और फेज कंपैरेटर के बारे में बात की थी और आज अपन डिस्कस करेंगे ड्युअलिटी बिटवीन एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एंड फेज कंपैरेटर। एक सेकंड, वो एक बार फोन आ रहा है। ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे ड्युअलिटी बिटवीन एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एंड फेज कंपैरेटर। सो व्हाट डज इट मीन ड्युअलिटी? Duality means we have one is amplitude comparator and phase comparator. Now duality means we have changed the amplitude. Either we can change amplitude comparator into phase comparator, or we can change phase comparator into amplitude comparator. Right? That is called duality. Right? We are having two comparator. We can change either amplitude into phase or phase into amplitude. Right? So an amplitude comparator can be converted into phase comparator and vice versa if the input quantities of the comparator are modified. Right? The modified input quantities are sum and difference of the original quantities. Suppose we have one is amplitude comparator and inputs are M and there is a one output. So we can change amplitude comparator into phase comparator with a different magnitude. One magnitude is called the summation of both the magnitude, and one input is the difference between these two magnitudes. That means m plus n and m minus n are the input for this amplitude comparator. Now this amplitude comparator is converted into phase comparator. And what do you mean by phase comparator? The condition for phase comparator is then phase angle between these two inputs must be less than 90. That is the condition for phase comparator. And what is the condition for amplitude comparator? The magnitude of m greater than magnitude of n. That is the condition for the amplitude comparator, right? So we have this amplitude comparator. That means this amplitude comparator is converted into phase comparator with different magnitude. इसको अपन प्रूफ करेंगे यहाँ पे। अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया है, इसको अपन प्रूफ भी करेंगे, राइट? दैट मीन्स ये वाला जो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर है जो कि फेज कंपैरेटर में चेंज हुआ है, ये कब काम करेगा? जब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है फाइव जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर फाइव लेस देन 90 डिग्री है दैट मीन्स आपका जो फेज एम्पलीट्यूड कंपैरेटर वो फेज कंपैरेटर में चेंज हो गया, राइट? तो ये अपन ये प्रूफ करने वाले हैं, राइट? और फाइव लेस देन 90 डिग्री कब होगा? जब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे ज्यादा होगा, राइट? राइट, तो ये अपन ये इसमें प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन प्रूव एम्पलीट्यूड कन्वर्टेड इनटू फेज कन्वर्टर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, राइट? तो मैं एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसलिए मेरे को दो इनपुट लेने पड़ेंगे m एंड n, राइट? तो मैं एक m और n एक बार इनपुट ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैं m और n यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ, राइट? एक यहाँ पे देते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे दो इनपुट ले रहा हूँ m एंड n, राइट? सो यहाँ पर मेरे पास तीन कंडीशन होगी। सपोज मैं केस वन की बात करता हूँ, सपोज केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में सपोज आई एम अज्यूमिंग in case first, suppose I am assuming that phi is greater than 90 degree. Suppose first case phi is greater than 90 degree. So phi is greater than 90 degree means that m the angle between m and n are greater than 90 degree. Suppose मेरे पास एक इनपुट ले रहा हूँ, सपोज मैं कितना किसी को एक मेरे को रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो मैं कितना किसी एक को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। सपोज मैं n को रेफरेंस ले, ठीक है? तो मैंने n को एक रेफरेंस ले लिया, राइट? अब इससे मुझे m जो है n से 90 डिग्री से ज्यादा आपको लीड करेगा। तो सपोज मैं इसको यहाँ से 90 डिग्री लीड करा देता हूँ, राइट? सपोज दिस इज n। नाउ दिस एंगल बिटवीन m एंड n आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट? तो इसमें मुझे चेंज क्या करना है?
the addition of m and n. M and n are the phasors. Now we will apply the phasor sum concept, right? तो phasor sum का concept लगाने के लिए we use parallelogram rule, right? If we summation m and n, suppose this is m and this is m, suppose, right? तो इनका मुझे समेशन करना है, then we use parallelogram rule, phasor concept और the vector concept, right? तो वेक्टर कॉन्सेप्ट से m और n का जो रिजल्टेंट फेजर होगा, राइट, दिस इज नोन एज m प्लस n, राइट, एंड एंगल बिटवीन दिस m एंड n इज phi, right? This angle is phi. This is m plus n phasor. Now with second input is m minus n. Now if we consider m minus n, then we write m minus n equal to m plus of minus n. If we add two phasors m and minus n, then we have obtained m minus n, right? So one phasor is m and second phasor is minus n. So minus n phasor is the anti-parallel phasor of m, right? So suppose this anti-parallel phasor is n, just suppose it. So this is n minus n. Now the summation of m and minus n, this m and this minus n, right? इसको मैं एक बार यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्राफ आगे तक जाएगा, मैं यहाँ तक आपको बनाया तो इजीली समझ में आ जाएगा. m and minus n, this phasor must be m minus n, right? This phasor is n minus n. Now we obtain m plus n, m minus n, right? So in this particular condition, we have obtained this m plus n and m minus n, right? तो m plus n और m minus n are इसके बीच में जो एंगल होगा, राइट? तो ये जो फेजर आपको दिख रहा है m plus n m minus n, इसमें कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है? आपको यहाँ से फेजर कितना दिख रहा है? पास में दिख रहा है या फिर आपको दूर दिख रहा है? अपन कंडीशन लेके चल रहे हैं, इट इज m is greater than n, इट इज अ कंडीशन, राइट? इट इज अ कंडीशन m greater than n. तो यहाँ पे मैंने फेजर m को जगह नहीं बनाया है, तो इसको दोबारा बना देता हूँ. तो अपन केस फर्स्ट में दोबारा से बना रहा हूँ. तो फर्स्ट केस में मैं क्या कंसीडर करूंगा? phi is greater than 90 डिग्री एंड m greater than n. जब मैं दोबारा से एक बार दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, वी हैव कंसीडर m greater than n. और दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, n is small and n is large, राइट? तो फर्स्ट केस में दोबारा से बना रहा हूँ, n is small and m is large, राइट? मैं m को थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, राइट? m मेरे पास ये आ गया, दिस इज n and this is n. अब मैं इसका फेजर सम करना मुझे, तो मैं इसका फेजर सम कर रहा हूँ. देखो एम्पलीट्यूड कंपैरेटर और फेज कंपैरेटर में मुझे चेंज करना है. अब एम्पलीट्यूड कंपैरेटर कंडीशन होती है दिस m ग्रेटर देन n, राइट? तो मैं m का मैग्नीट्यूड है वो n से ज्यादा ले रहा हूँ. उस पर्टिकुलर केस में अपन फेज कंपैरेटर में चेंज कर पाएंगे. अब इसका जो रिजल्टेंट है इट इज m प्लस n. तो मैंने डायग्राम जो है पिछला वाला गलत बनाया है, दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, इट इज m प्लस n. अब आप देखिएगा कि कौन सा वाला फेजर तो आपका ज्यादा होगा कम, राइट? यहाँ से आपको इजी दिखेगा. नाउ सेकंड फेजर इज m माइनस n. नाउ दिस इज minus n, this is minus n, and the summation of m plus n minus n, right? This phasor is m minus n. अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है that m minus n phasor is greater than m plus n. तो जो m minus n का जो फेजर है वो m plus n से ज्यादा होगा. तो इसे मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, for this एम्पलीट्यूड कंपैरेटर m minus n is greater than m plus n, right? तो ये फर्स्ट केस आपका बन जाएगा इफ m minus n greater than m plus n. और इसमें जो phi जो है आपका, तो phi is greater than 90. ये कंसीडर phi is greater than 90, right? तो इसमें आपको इजीली क्लियर दिख रहा है फर्स्ट केस के अंदर अपना अपने पास जो फेज कंपैरेटर में चेंज हुआ था, उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए मुझे? प्रूफ क्या करना है? m plus n greater than m minus n and phi less than 90. दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए. बट यहाँ पर हो क्या रहा है? m minus n आपका m plus n से ज्यादा है, दैट मींस ये कंडीशन मुझे नहीं चाहिए. और phi greater than 90 डिग्री है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, राइट? दैट मींस दिस फर्स्ट केस
we will not consider for the phase comparator, right? तो फर्स्ट केस मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं कंसिडर करूंगा? बिकॉज आपका जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट है, राइट? ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप जो एम का जो मैग्नीट्यूड है वो एन से आप ज्यादा लेके चलोगे, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड कंपैरेटर आपने कंसिडर किया, राइट? ये वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला केस। देन अपन चलते हैं सेकंड केस पे। केस सेकंड। अब केस सेकंड में अपने पास से केस सेकंड में ले लेता हूँ। पहले मैंने केस कंसिडर क्या किया था, 5 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मैं सेकंड केस कंसिडर कर रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अंदर आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, ये अज्यूमिंग द एम्पलीट्यूड कंपैरेटर एंड एम्पलीट्यूड कंपैरेटर के लिए m इज ग्रेटर देन n, राइट? तो आपको जो m का जो मैग्नीट्यूड है वो n से ज्यादा लेना है, राइट? तो मैं n, ये मैंने n बना दिया है, राइट? दिस इज n। और m का मैग्नीट्यूड जो है n से ज्यादा लेना है। तो मैं सपोज ये इससे ज्यादा ले रहा हूँ, दिस इज n, राइट? तो ये तो आपके पास n फेजर है, ये आपके पास n फेजर है, और इनका जो समेशन होगा m प्लस n यूजिंग पैरेललोग्राम रूल, इससे आपको दोनों फेजर का आप सम कर सकते हो। एंड दिस इज m is m and n is a phasor sum, and m plus n is the phasor sum of m and n, right? राइट? तो मैंने 5 जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? इसी तरीके से अगर आपको m माइनस n करना है तो सेम काम करना आपको। एक आपको एंटी पैरेलल फेजर लेना है, दिस इज माइनस n, दिस इज माइनस n, और इनका आपको फेजर सम करना है, राइट? तो मैंने इसका फेजर सम करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास m माइनस n हो जाएगा, राइट? फेजर सम ऑफ m एंड माइनस n, तो देन m एंड माइनस दिस फेजर मस्ट बी m माइनस n, राइट? अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो m प्लस n फेजर है और m माइनस n फेजर है, राइट? इनका मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ये डायगोनल है वो डायगोनल दोनों साइड में सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो फेजर है उसके पास में है, तो ये फेजर बहुत कम आ रहा था और ये वाला फेजर बहुत दूर है, राइट? तो इनका जो मैग्नीट्यूड है उसमें डिफरेंस आ रहा था, बट यहाँ पर आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ m प्लस n जो है वो m माइनस n से इक्वल आएगा, राइट? ठीक है, दैट मीन्स जो 5 इक्वल टू 90 की कंडीशन है, मेरे पास दोनों मैग्नीट्यूड कम आ रहे हैं, राइट? सेकंड केस वो मुझे क्या चाहिए था, m प्लस n ग्रेटर देन m माइनस n, 5 लेस देन डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है m प्लस n ग्रेटर देन m माइनस n, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होल्ड नहीं होती, राइट? दैट मीन्स ये केस मुझे नीचे, राइट? सेकंड केस वी विल नॉट कंसीडर, राइट? अब अब मैं लूंगा थर्ड केस, राइट? अब मैं थर्ड केस ले रहा हूँ, सपोज थर्ड केस लेते हैं अपन, केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड के अंदर वी विल कंसीडर फाई इज लेस देन 90 डिग्री, राइट? तो ये प्रूव करना है, फाई लेस देन 90 डिग्री, और आपके पास कंडीशन ऑलरेडी रहेगी m इज मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन n, राइट? अब मैं इस केस को कंसीडर कर रहा हूँ, फाई मुझे लेस देन 90 डिग्री चाहिए। मैं सपोज एक फेजर ले लेता हूँ, n रेफरेंस फेजर, रेफरेंस फेजर n हो गया, और एक आपको m और n के बीच में कितना फेज एंगल चाहिए, 90 डिग्री से कम। तो आपके m फेजर को आप इस डायरेक्शन में बनाओगे, राइट? ये मेरे पास फेजर कौन सा है, m, दिस फेजर मस्ट बी m एंड दिस फेज मस्ट बी m, राइट? अब इनका मुझे फेजर सम करना है, तो फेजर फेजर सम मैं यहाँ से कर सकता हूँ पैरेललोग्राम लॉ से, फेजर सम ऑफ m एंड n। यहाँ पे आपके पास जो इनका समेशन आएगा इट इज m प्लस n, राइट? तो मैं m प्लस n का फेजर सम m प्लस n, m प्लस n, राइट? अब मुझे करना है m और माइनस n का फेजर सम, तो माइनस n आपके पास, ये आपके पास माइनस n आ गया, इसे माइनस n,
एंड इनका आपको फेजर सम करना है। तो फेजर सम करने के लिए वी यूज पैरेललोग्राम लो। यहाँ पर आप पैरेललोग्राम लो भी ले सकते हो, m माइनस एन क्यू। दिस फेजर इज m माइनस एन, राइट। तो m प्लस और m माइनस में आप डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो इजीली कि m प्लस n मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन m माइनस n, राइट। दैट मीन्स जो अपनी कंडीशन थी पाई लेस देन 90 डिग्री कि इफ यू चेंज द मैग्नीट्यूड m प्लस n एंड m माइनस 1 देन एम्पलीट्यूड कंप्यूटर इज कन्वर्टेड टू फेज कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने m प्लस n और m माइनस में चेंज कर दिया और मेरे पास जो एंगल कितना है लेस देन 90 डिग्री। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड हो रही है। पाई लेस देन 90 डिग्री और फाई लेस देन डिग्री m प्लस n मस्ट बी ग्रेटर देन m माइनस n। तुमने थर्ड केस लिया है, राइट। दोनों कंडीशन आपकी होल्ड हो रही है। दैट मींस दिस एम्पलीट्यूड कंप्यूटर चेंज इनटू फेज कंप्यूटर, राइट। So we can change the amplitude converter into phase converter by changing the magnitude, or the inputs are summation of both the magnitude and difference of both the magnitude, right? यहाँ तक क्लियर है ये वाला पार्ट? Now the second we can change the phase converter into amplitude converter, right? So second case we consider the phase converter we can change into amplitude converter. So second is phase converter we can change into amplitude converter. Now the phase converter, the condition for the phase converter, suppose we have phase converter and two inputs are m and n. The phase converter will operate or will work when the phase difference between these magnitude must be less than 90 degrees. Then this phase converter will operate, right? This is the condition for the phase converter. Now we will change the phase converter into amplitude comparator with changing the magnitude. The same concept with m plus n and m minus n. If we change the magnitude, then we can obtain the phase converter must be changed into the amplitude converter. Now we indicate that the phase difference between this m plus n m minus n I indicate by this angle lambda, right? तो phi तो मैं m और n के बीच में एंगल इंडिकेट कर रहा हूँ और m प्लस n और m माइनस n के बीच में एंगल कितना इंडिकेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, राइट। तो लेस देन 90 डिग्री यहाँ पर मैं इसको लेमडा से डिनोट कर रहा हूँ। तो मेरे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए? कंडीशन क्या आनी चाहिए? कंडीशन ये आनी चाहिए कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा m और ग्रेटर देन n, अगर ये कंडीशन आ जाती है m इज ग्रेटर देन n, ये सॉरी लेमडा लेस देन 90 ये कंडीशन आ जाती है, दैट मींस इस कंडीशन में क्या होगा आपका ये फेज कंप्यूटर एम्पलीट्यूड कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। मुझे एंगल वाली कंडीशन देखनी है। इसमें मैंने क्या देखा था, जब आपके पास एम्पलीट्यूड कंप्यूटर था तो मैंने कौन सी कंडीशन देखी थी? मैग्नीट्यूड वाली, राइट। और अगर फेज कंप्यूटर से एम्पलीट्यूड कंप्यूटर मुझे चेंज करना है तो मैं कौन सी कंडीशन देखूंगा? फेज एंगल की, राइट। तो नाउ वी विल कंसीडर फेज कंप्यूटर। अब फेज कंप्यूटर में आपको क्या करना है? एंगल आपको देखना है, नहीं कि आपको मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। तो एंगल देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक कंसीडर करोगे m और n। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक मैग्नीट्यूड m है और एक n है, राइट। और m और n का जो फेजर सम है वो m प्लस n होगा और m और माइनस n का जो फेज डिफरेंस है वो m माइनस n होगा। अब मैं जो एंगल देख रहा हूँ वो m प्लस n और m माइनस n में देख रहा हूँ, राइट। तो इसके अंदर आपके पास आपके पास तीन कंडीशन होगी। उसमें मैंने क्या देखा था? फेज। यहाँ पे मैं क्या देखूंगा? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आपका m और n के बीच में तीन कंडीशन हो सकती है। m इक्वल टू n हो सकता है, m लेस देन n हो सकता है और m ग्रेटर देन n हो सकता है, राइट। तो मैं इसको एक एक्स्ट्रा पेज में लेके समझा देता हूँ। सपोज ये फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में मैं सपोज कंसीडर लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट केस इफ m इज इक्वल टू n, तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ m इक्वल टू n, राइट। तो फर्स्ट केस में मैं m इक्वल टू n लेके चल रहा हूँ, राइट। तो मैंने m इक्वल टू n लेके चल रहा हूँ, तो m फॉर दिस वेक्टर इज m, दिस वेक्टर मस्ट बी n। और m का मैग्नीट्यूड आपको इक्वेट लेना है।
तो इक्वेट लेने के लिए आप क्या करोगे, इसके जस्ट जस्ट बराबर लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इक्वल ले लेता हूँ ना, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं सपोज इस पे ये मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनका फेजर सम करना है आपको, तो एम और एन का मैं फेजर सम कर रहा हूँ। सपोज दिस m plus n, राइट, दिस इज m plus n। अब मुझे क्या करना है, m माइनस एन लेना है, तो मुझे एंटी पैरेलल फेजर लेना पड़ेगा। मैं एक एंटी पैरेलल फेजर ले रहा हूँ माइनस एन, तो दिस इज सपोज माइनस एन। अब मुझे इनका फेजर सम करना है, तो मैं इनका फेजर सम कर देता हूँ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो। दिस फेजर मस्ट बी m minus n, this figure must be m minus n, राइट। अब मुझे क्या देखना है, इन दोनों बीच में एंगल है। जब आप इन दोनों बीच में एंगल ऑब्टेन करोगे, दिस लैम्डा, दोनों के दोनों m और n इक्वेट है, चाहे इसको किसी भी एंगल पे ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा m प्लस n के बीच में, दैट लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों इक्वेट हैं, इनको आप ऑब्टेन करो, यहाँ से आपको दिख नहीं होगा कि 90 डिग्री ज्यादा आएगा या कम आएगा। जब आप एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड लोगे, तो देन यू विल कैलकुलेट दैट लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री इफ केस फॉर द m इक्वल टू n, राइट। तो फर्स्ट केस में अपने पास लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, वो अपने वाला पार्ट नहीं है। अपने वाला पार्ट क्या है, लैम्डा लेस देन 90 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये वाला केस अपने पास नहीं बन रहा है, फर्स्ट वाला केस, राइट। ये वाला केस मुझे नहीं चाहिए। इसी तरीके से सपोज मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, केस सेकंड। अब के सेकंड में जस्ट अपोजिट लूंगा मैं, m इक्वल टू n लिया है, तो या तो आप पहले m ग्रेटर देन n ले लो या m लेस देन n ले लो, ठीक है। तो सपोज मैं ले रहा हूँ m लेस देन n, सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में m का जो मैग्नीट्यूड है वो n से ज्यादा होगा, n से कम होगा। इसका मतलब n का मुझे ज्यादा मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं सपोज n का मैग्नीट्यूड ज्यादा ले लेता हूँ, कि मैंने n का मैग्नीट्यूड ज्यादा ले लिया, ठीक है। और m का मैग्नीट्यूड आपको बहुत कम रखना है। मैंने m का मैग्नीट्यूड सपोज बहुत कम रखा, ठीक है। तो सपोज दिस इज m एंड दिस इज n। इनका फेजर सम करना है m प्लस n के लिए, इनका फेजर सम कर लीजिए। तो मैंने ये फेजर सम कर दिया इसका, इट इज m प्लस n, इट इज m प्लस n, राइट। इनका मैग्नीट्यूड आ गया m प्लस n। अब मुझे m माइनस n चाहिए। अब इसके मैं एंटी पैरेलल फेजर ले लेता हूँ माइनस n। तो मैंने एंटी पैरेलल फेजर ले लिया, दैट इज माइनस n, माइनस n। अब इनका आपको फेजर सम करना है, तो सेम काम करना आपको, by using parallelogram law we can add up m and minus n। So this is minus n and this is plus n। Now we can add up m and minus n। तो m आपका ये रहा, n ये रहा, इनका फेजर सम आप कर सकते हो। तो दिस इज m minus n, m minus n। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि m प्लस n ज्यादा है, m माइनस n ज्यादा है। ये देखो, ये वाला जो बाउंड्री है दोनों की सेम है, ये बाउंड्री से पहले आ रहा है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है। तो पिछली बात है, m प्लस n का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सॉरी ये एंगल देखना है, सॉरी एंगल देखना है ना आपको, यहाँ पर अपन एंगल देखना है लेमडा। तो एंगल देखना है, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, इधर भी आउटसाइड इधर भी आउटसाइड, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल आप कैलकुलेट करोगे, इस लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपको कब क्लियर होगा, जब मैं नेक्स्ट वाला बताऊंगा, उसका कंपेयर करोगे तो आपको इजीली दिखेगा लेमडा लेस देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपका एन मैग्नीट्यूड एम से ज्यादा है, तो एक्सटेंड हो रहा है, दैट मींस ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अब मैं थर्ड केस कंसीडर लेके चलूंगा, दैट इज एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। इसमें आपका जो एम का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा और एन का मैग्नीट्यूड आपका कम होगा, राइट। तो से थर्ड केस लेके चल रहा हूँ मैं, इट इज थर्ड केस, केस थर्ड, केस थर्ड। तो केस थर्ड में लेके चल रहा हूँ, इट इज एम इज ग्रेटर देन एन। इस केस में अपन जो एम का मैग्नीट्यूड ज्यादा लेके चल रहे हैं,
तो एन आपका स्मॉल रहेगा, एन आपका ज्यादा रहेगा। तो मैं इसको एन को कम कर देता हूँ और एम का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज एम फेजर एंड दिस फेजर इज एन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम इज ग्रेटर देन एन। अब मुझे उसका फेजर सम करना है। तो फेजर सम करने के लिए using parallelogram law we can add up m and n, and this phasor is n plus n, right? With m plus n, and we have one phasor is antiparallel phasor, that is minus n। तो मैं यहाँ से माइनस n फेजर ले लेता हूँ, that is minus n, right? Now we can add m and minus n by using parallelogram law, right? तो पहला हम लोग का यूज में लेके मैं इन दोनों को एड अप कर रहा हूँ। ठीक है, now we can add up m and minus m। So here phasor is m minus n, right? Now here you can see that then the angle between m plus n and m minus n must be less than a degree। दिखा आपको, यहाँ पे दोनों फेजर जो है कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो लेमडा आएगा, द लेमडा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, राइट? लेमडा लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स मेरे पास जो m ग्रेटर देन n का जो केस था, उस केस में आपके पास जो लेमडा है वो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। तो आपके पास यही केस था कि मेरे पास एन जब एन ग्रेटर देन होगा तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेमडा लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके थर्ड केस के अंदर लेमडा लेस देन 90 डिग्री जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। दैट मींस दिस फेज कंपेरेटर इज कन्वर्टेड इनटू एम्पलीट्यूड कंपेरेटर। क्लियर है ये वाला? ये वाला पार्ट क्लियर है? तो जवाब दे दो एक बार, क्लियर है कि नहीं है? प्रसून क्लियर है? किसी का भी जवाब नहीं है? ओके, तो अभी अभी आप 2 मिनट रुकिए, मैं वो अभी वापिस आ रहा हूँ कोई काम। 2 मिनट जस्ट वेट।
हेलो। मेरी जसवंत साउंड आ रही है मेरी क्लियर? अंजलि, अंजलि नहीं है अभी? एक बार उसको बोल दो, हाँ, बुला दो एक बार।